Now, today we are going to discuss about area of shaded portion in exercise 12.3. Before starting the exercise, there are some formulas with the help of which we are able to solve the questions. Now, the formulas are फॉर्मूले बेटा बहुत इजी है जो हम प्रीवियस एक्सरसाइज या प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं लाइक एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इनटू a square means side square area of minor sector theta upon 360 pi r square area of major sector 360 minus theta upon 360 into pi r square area of minor segment theta upon 360 into pi minus 1/2 sin theta into r square multiplied with the bracket. Diagonal of square means if we have a square that is the diagonal. If that is a side A, it is also A. The diagonal will be A√2. अच्छा एक बात बहुत सिंपल है बेटा हमारे पास अगर मैं कहता हूं that ABCD is a square so that is right angle तो diagonal will be A√2 in the same way अगर मैं इतना पोर्शन डिस्कस करता हूं so it is isosceles right angle triangle then it will be hypotenuse of the triangle the formula for the diagonal of square and the hypotenuse of the isosceles right angle triangle will remain same clear आइसो अपना हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला भी क्या रहेगा हमारे पास A√2 A means equal sides of the square area of semicircle half into pi r square area of quadrant 1/4 into pi r square area of circle that is a pi r square now area between two concentric sectors that is if we have a circle and OAB is a sector and also this is a CD it is also be a sector और ये जो एंगल है थीटा it is same for both OC and OD OA and OB और आपको ये वाले पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है देन स्मॉलर सेक्टर हैविंग रेडियस स्मॉलर आर बिगर सेक्टर हैविंग रेडियस कैपिटल आर एंड द थीटा विल बी द एंगल बिटवीन दीज टू रेडियाई तो द फॉर्मूला विल बी थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्लियर सो दीज आर द फॉर्मूलाज with the help of which we are going to discuss about the questions of the exercise. Now students इस वीडियो को 2 मिनट के लिए स्टॉप करके सारे फॉर्मूलाइज नोट कर लेना so that we are able to solve the questions by memorize this formulas. Now in this question ये हमारे पास बेटा एक सर्कल है और अंदर हमारे पास PQR is a right angle triangle clear and we have to calculate the area of this shaded portion अच्छा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा हमारे को जिस शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है कैलकुलेट करना है अगर हमारे को उस शेडेड पोर्शन की शेप पर्टिकुलर पता है तो हम प्लस करते हैं बेटा अगर उसकी पर्टिकुलर शेप नहीं पता तो हम माइनस करते हैं क्लियर मींस फॉर the area of shaded
portion. If shapes are known, if the shapes are known means if they have a particular shape, then हम एरियाज को क्या करते हैं बेटा, प्लस. बट इफ शेप्स आर नॉट नोन तो हम क्या करते हैं बेटा, माइनस. इस चीज को ध्यान रखना. अगर हमारे को शेप्स पता है तो हम प्लस करेंगे, नहीं पता तो हम माइनस करेंगे. वो अकॉर्डिंग टू डायग्राम हमारे को अकॉर्डिंग टू फिगर पता लगेगा कि कौन सी शेप या कौन से एरिया में से किस पर्टिकुलर शेप का एरिया माइनस करना है या प्लस करना है. क्लियर. अब इसी क्वेश्चन में हम देखते हैं बच्चे. इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है सर्कल में हमारे पास है एक राइट एंगल ट्रायंगल. जे व्हाट इज क्यूआर? क्यूआर इज द diameter of the circle. Clear. And also QR is hypotenuse of right angle triangle. अगर ये hypotenuse है तो मेरे को एक साइड PR पता है 7 सेंटीमीटर, QR ना PQ is at 24 सेंटीमीटर. If I am applying here Pythagoras theorem, Pythagoras condition, तो मेरे को क्या QR की वैल्यू पता लग जाएगी. और वो QR will be the hypotenuse as well as the diameter of the complete circle. Now in triangle PQR using Pythagoras theorem, that is h square is equal to p square plus b square. क्लियर. हाइपोटेन्यूस क्या है, QR स्क्वायर. परपेंडिकुलर 7 स्क्वायर प्लस बेस विल बी 24 स्क्वायर. 7 स्क्वायर 49, 24 स्क्वायर 576, दोनों का सम 625. क्लियर. यहां पर है QR स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर होता है, दैट इज 25 स्क्वायर. QR स्क्वायर, पावर टू पावर कैंसल. यू विल गेट हियर QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. मींस दिस QR इज 25 सेंटीमीटर. मींस diameter of the circle will be 25 सेंटीमीटर. हमारे को इस शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है. तो कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? इफ सेमी सर्कल में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया जाए, देन यू विल आर एबल टू गेट द एरिया ऑफ दिस रिमेनिंग शेडेड पोर्शन. Same way. Now, for the circle, what is diameter? That is 25 centimeter. What will be the radius? That is diameter upon 2. That is 25 by 2 centimeter. Clear? And also about the triangle. ट्रायंगल बेस कितना है हमारे पास, दैट इज 7 सेंटीमीटर. एंड व्हाट अबाउट द हाइट? हाइट इज 24 सेंटीमीटर. क्लियर. नाउ एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन विल बी सेमी सर्कल में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे. दैट इज एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज? इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. एंड राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. So that will be semicircle half
pi r square minus 1/2 base into height. So that is 1/2 22/7 नहीं, हमारे पास रेडियस कितना है बेटा 25/2. So the pi will be 3.14 and the r, what is r? R is 25/2 means 25/2 into 25/2 minus 1/2 into base, the base is 7 into h means height is 24. क्लियर? तो इस सारे को कैलकुलेट कर लेना बेटा. कैलकुलेट करने के बाद जो भी होगा दैट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. नाउ इन दिस क्वेश्चन A, B, C, D is a square. Clear? Or what is this? It is a semicircle. हमने क्या किया बेटा AB के मिड पॉइंट पर कंपास रख के ऐसे एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया. मींस फॉर दिस सेमी सर्कल AB इज अ डायामीटर. क्लियर? अब जो AB है वो स्क्वायर के लिए तो साइड है, बट इस सेमी सर्कल के लिए दैट इज अ डायामीटर. इन द सेम वे CD is side for the square and for the semicircle it is a diameter, and you have to calculate the area of this shaded portion. क्लियर ना? मैंने आपको क्या कहा था, अगर शेप्स पता है तो प्लस करो, नहीं पता तो माइनस करो. अभी देखो ये शेप कैसी बन रही है, लाइक एज दिस. क्या ये कोई पर्टिकुलर शेप है हमारे पास? क्या अगर ये ऐसे होती तो हम कहते वाकई ये एक ट्रायंगल है, बट इट इज अ कर्व. इट इज आल्सो बी अ कर्व एंड दैट इज अ स्ट्रेट लाइन. इट इज नॉट अ पर्टिकुलर शेप. तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे. किस में से? स्क्वायर के एरिया में से दो सेमी सर्कल्स के एरियाज को माइनस करेंगे. अच्छा, एक सेमी सर्कल ये हो गया, एक सेमी सर्कल ये हो गया, दोनों. अच्छा, एक सेमी सर्कल हो गया ये और दूसरा सेमी सर्कल हो गया ये. दो सेमी सर्कल मिलकर के एक कंप्लीट सर्कल की फॉर्मेशन करते हैं. तो व्हाट आई विल डू हियर, स्क्वायर में से सर्कल का एरिया माइनस करेंगे. क्लियर? नाउ स्क्वायर की साइड कितनी है बेटा हमारे पास, दैट इज 14 सेंटीमीटर. फॉर द सेमी सर्कल डायामीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर. रेडियस विल बी 7 centimeter. Clear? Now, according to question, area of shaded portion. What will be here? Area of square minus area of circle, because two semicircle equal to one circle. Clear? तो area of square that is a square minus area of circle pi r square. साइड की वैल्यू यहां से पुट कर देना, r की वैल्यू यहां से पुट कर देना, and then after the calculation you will be able to get the answer of this shaded portion. Now OAB is a equilateral triangle, and what is this? OCPR. It is a sector and that is triangle. अब हमारे को सारे शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है, बट ध्यान से सुनना व्हाट आई एम सेइंग हियर.
OAB is a equilateral triangle, हमारे को शेप पता है ना. Secondly, CPR is a major sector, ये भी शेप हमारे को पता है. क्लियर. और इस सेक्टर का रेडियस है 6 सेंटीमीटर, आल्सो टू बी नॉन. इक्विलेटरल ट्रायंगल की हमारे को साइड भी पता है, दैट इज 12 सेंटीमीटर. क्लियर. अगर OAB is an equilateral triangle, then every angle of the equilateral triangle is 60 degree. Means this angle will be 60 degree. तो यानी कि मेरे को तो सेक्टर का एंगल भी पता चल गया. क्लियर. सो नाउ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए साइड इज 12 सेंटीमीटर. Also मेजर सेक्टर के लिए थीटा इज 60 डिग्री. क्लियर. एंड रेडियस गिवन है, दैट इज 6 सेंटीमीटर. क्लियर. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ shaded portion will be area of equilateral triangle plus area of major sector. Clear. And what will be area of equilateral triangle का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 into a square plus area of major sector, that is 360 minus theta upon 360 into pi r square. a की वैल्यू ये है, r की वैल्यू ये है और थीटा की वैल्यू दिस. इन सभी की वैल्यू पुट करके then you are able to get the answer of this question. Now ABCD is a square with side 4 centimeter. Now at every vertex हमने एक सेक्टर ड्रॉ किया बेटा ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर. मींस 1 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके यहां ए वर्टेक्स पे कंपास ओपन पुट करके एक ये सेक्टर बना दिया. इन द सेम वे एक ये सेक्टर है, एक ये सेक्टर है और एक ये सेक्टर है. बिकॉज ABCD इज अ स्क्वायर, सो द एवरी एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री ईच. And you have to calculate the area of this shaded portion. What is the radius of this sector? That is 1 centimeter. Radius 1 centimeter. Radius 1 centimeter, and the radius is 1 centimeter. Clear? है तो ये बेटा हमारे पास एक सेक्टर, बट अगर सेक्टर में एंगल 90 डिग्री बन जाए सो दैट विल बिकम अ क्वाड्रेंट. और क्वाड्रेंट बन कितने रहे हमारे पास? 1 2 3 4. मींस एक क्वाड्रेंट ये हो गया, एक क्वाड्रेंट ये बन गया, एक क्वाड्रेंट ये हो गया और एक क्वाड्रेंट ये हो गया. तो 4 क्वाड्रेंट्स मिलकर के एक कंप्लीट क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ अ सर्कल. तो मींस स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट मींस एक सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, देन यू आर एबल टू गेट द एरिया ऑफ दिस रिमेनिंग शेडेड पोर्शन. लाइक अब स्क्वायर side is 4 centimeter. Clear? Quadrant radius is 1
centimeter. Clear? We know that 4 quadrant is equal to 1 circle. Clear? So according to the question, area of shaded portion is equal to area of square minus area of circle. What is the area of square? Formula is a square minus area of circle, that is pi r square. And what is a? A is 4 centimeter. What is r? R is 1 centimeter. Clear? इन सभी को वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन करके देन यू आर एबल टू गेट द आंसर ऑफ दिस. Now we have a circle and there are two diameters AB and CD. Two diameters are intersecting each other at the angle of 90 degree, means theta equal to 90 degree. Clear? And what is the radius of this complete circle? That is 7 centimeter. That is 7 centimeter. Clear? Now ये 7 सेंटीमीटर स्मॉल सर्कल के लिए डायमीटर होगा बेटा. क्लियर? तो मींस दिस 7 centimeter will be the diameter for this smaller circle, and these are two segments. Clear? इन segments का radius है 7 centimeter and theta is 90 degree. और हमारे को इस शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है. तो ये क्या है? एक सेगमेंट. ये भी क्या है? सेगमेंट. और ये क्या है? अ कंप्लीट सर्कल. यानी कि हमारे को सबकी शेप पता है. अगर शेप्स आर नॉन मींस वी विल ऐड ऑल द एरियाज ऑफ द गिवन फिगर्स. क्लियर? नाउ सबसे पहले मैं लिखता हूं बेटा सेगमेंट के बारे में. सेगमेंट का रेडियस कितना है? That is 7 centimeter. And what will be the theta? That is 90 degree. Clear? Now for smaller circle, diameter is 7 centimeter and the radius is 7 by 2 centimeter. Now according to question, the area of shaded portion. Clear? According to question, the area of the shaded portion will be 2 into area of segment plus area of smaller circle. Clear? तो एरिया ऑफ सेगमेंट 2 थीटा अपॉन 360 इंटू पाई माइनस 1 बाय 2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वेयर. क्लियर? एंड एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज पाई आर स्क्वेयर. थीटा की वैल्यू हमारे को पता है, आर की वैल्यू हमारे को पता है, स्मॉल आर की वैल्यू भी हमारे को पता है. बस सबकी वैल्यू पुट करके देन यू आर एबल टू गेट द एरिया ऑफ दिस शेडेड. क्यों इन्हें चट. नाउ in this question OPQ is a quadrant. ये हमारे पास एक कंप्लीट क्वाड्रेंट है. क्लियर?
यानी कि एक हमारे पास है क्वाड्रेंट. इनसाइड द क्वाड्रेंट देयर इज अ O A B C is a square. Clear? And square की साइड गिवन इज 20 सेंटीमीटर. अच्छा, नॉर्मली अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? क्वाड्रेंट में से अगर इस स्क्वायर का एरिया माइनस कर दें, then you will able to get the area of shaded portion. But the main thing is this: we have not given the radius of the quadrant. So first of all, we are going to calculate what will be the radius of the quadrant. ध्यान से सुनना जरा. अगर मैं OB को ज्वाइन करता हूं, क्लियर, और O से लेके B तक कंपास ओपन करके मैं ऐसे आर्क लगाता हूं. जरा ध्यान से देखो जरा, जितना OB है उतना OP है, जितना OP है उतना OB है और उतना ही OQ है. तो मींस OB जो है वो स्क्वायर के लिए तो एज अ डायगोनल है, बट क्वाड्रेंट के लिए दैट विल बी अ रेडियस. क्लियर? तो मैं डायगोनल ऑफ स्क्वायर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी है फॉर द डायगोनल ऑफ स्क्वायर. दैट इज, स्क्वायर है तो एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री. मैं डायरेक्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ फाइंड आउट करूंगा. यू कैन आल्सो यूज पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्रायंगल. क्लियर? नाउ for the square, what is side given? Side of the square is 20 centimeter. Now diagonal of square, that is a root 2 centimeter. What is a? So the diagonal will be 20 root 2 centimeter. This diagonal will be the radius of given quadrant. Here now the quadrant radius is 20 root 2 centimeter. Clear? Now according to question, area of shaded portion, what will be here? क्वाड्रेंट में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर दो. लाइक एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर. क्लियर? व्हाट विल बी द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट? 1/4 पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर. r की वैल्यू ये है, a वैल्यू मींस साइड ऑफ द स्क्वायर. इन दोनों की वैल्यू पुट करके यू विल बी एबल टू गेट द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन. नाउ it is the last question of the exercise 12.3. ABCD is a square of each side 8 centimeter. Clear? And BD is a diagonal. Clear? And what is this? ये क्या है? It is a segment. हमने कंपास यहां पर रखी, D तक ओपन करके एक आर्क लगा दी बेटा. इन द सेम वे अब कंपास C पे रख के D तक ओपन करके एक और आर्क लगा देंगे बेटा हम, एंड दैट इज आल्सो बी अ सेगमेंट. हमारे पास 2 सेगमेंट्स की फॉर्मेशन हो गई और दोनों सेगमेंट्स के लिए रेडियस विल बी फ्रॉम
A to D and A to B, and A to B side is 8 सेंटीमीटर। यानी कि जो ये 8 सेंटीमीटर है स्क्वायर के लिए तो ये साइड है, बट सेगमेंट के लिए इट इज अ रेडियस, इट इज अ रेडियस। एंड ABCD is a square, so the every angle will be of 90 degree, means that is theta is 90 degree and also theta is 90 degree। तो हमारे पास यहाँ पे कितने सेगमेंट्स बन गए? 2। तो what will be the area of this complete shaded portion? 2 into area of segment। So for segment radius is 8 centimeter, theta is 90 degree, so the according to question area of shaded portion is equal to 2 into area of segment। Clear? Now area of segment, that is theta upon 360 pi minus 1 by 2 sin theta into r square। What is theta? The theta is 90 degree. What is r? R is 8 centimeter। After putting all the values in this condition, you will be able to get the area of this shaded portion। Now that is the completion of your chapter 12। In my next video I will start next chapter। Okay beta।